Sir, in a house of 543 MPs, it takes 78 of us who have fought thousands of men against thousands of men to eventually reach this house, sir. It's these 78 women MPs here that represent the voice, dreams, challenges of 70 crore women who look up to this house, to this government, and especially to the women folk over here to speak up of the plights that they face on the ground, the underprivileged who do not have the privilege like us to be here, sir. Sir, only 14% women after 75 years in this house, 24 in the first Lok Sabha and 78 in the 17th Lok Sabha. This, if you look at it, this rise has, if you look at the increase in percentages, barely 9% in 75 years. Even the speed of a bullock cart is more than that, sir. And we are talking about women representation to 50% of our population, sir. Sir, it is shocking that 11 out of 13 MPs in this house are men. Now, if there is something more unfair and uneven than that, I can't imagine what could be more unfair and more uneven. And that is the reason why, sir, our legislative assemblies, almost 50% of them in India have never seen a woman legislator from those constituencies. 50% of India has never voted and made a woman legislature. Now, that is, and those women who now, their voting rights, their participation is even more than the men today. But neither is their participation here equal, even though their 67% is higher than the men who vote to make these governments. Why? Because the woman is aspiring that she be heard and she be a part of the decision making, sir. Sir, आजादी के अमृत काल में 75वें साल में नया पार्लियामेंट, न्यू इंडिया, नया भारत, 24 घंटे पहले सर बहुत एक्साइटमेंट थी कि अब एक शाम को लेट इवनिंग को एक कैबिनेट की मीटिंग बहुत सीक्रेसी में, पहले तो किसी को समझ नहीं आई कि ये सेशन बुलाया किस लिए गया, पता नहीं इसको इतना छुपा के क्यों रखा। उसके बाद एजेंडा क्या है, एजेंडा किसी को नहीं दिया। उसके बाद लेट इवनिंग कैबिनेट मीटिंग में क्या हुआ किसी को नहीं बताया। व्हाट वाज दिस श्राउड ऑफ सीक्रेसी फॉर? और जब पता लगा कि विमेन बिल आ रहा है, रिजर्वेशन बिल, तो इतनी एक्साइटमेंट देश में सबने वेलकम किया कि 75 साल बाद इवेंचुअली we are getting our right. The hopes were built up till there, only to be dashed in 24 hours because in the details lies the devil. और वो जो पेपरलेस न्यू पार्लियामेंट में, अब ये कंप्यूटर जो मेरा तो उधर हेडफोन्स भी नहीं काम कर रहा था, so I couldn't hear anything, leave alone read in this. When the details came out that this reservation bill is going to come in after the census takes place, after delimitation, so sir 1885 के बाद for the first time in the history, जब से ये सेंसस का काम शुरू हुआ है, it's the first time the census had been delayed by 2 years. How many more years is it going to be delayed by? किसी को आज तक कोई एक्सपायरी डेट नहीं दी है कि इस डेट तक हो जाएगा, हमको नहीं पता। उसके बाद डिलिमिटेशन में कितना टाइम लगेगा वो भी हमको नहीं पता, और उसके बाद रिजर्वेशन बिल आएगा। So today there is no final date as to when women will get that 33% of reservation in this house. So what was the urgency to bring in this session and to bring in this bill? जब आपके 2014 और 19 के मैनिफेस्टो में आपने ये 33% रिजर्वेशन ऑर्डर आपने प्रॉमिस किया है, तो 9.5 साल आपको क्यों लग गए इधर लाते हुए? 9.5 साल आप क्या कर रहे थे? और अब आप 6 महीने पहले आप लेके आ रहे हैं ऐसे का बिल जो अगले 5-7 साल तक किसी औरत को उसका हक नहीं मिल सकता। आज आप लड्डू दिखा रहे हैं औरत को, बोल रही है लड्डू आपके लिए है लेकिन आप इसको खा नहीं सकते, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो आप डेट बताइए ना, आप कब तक देंगे? सर, कारण ये निशिकांत जी कहते हैं कि 2 साल से सेंसस नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे पेंडेमिक चल रहा था। तो भैया चाइना ने कैसे कर लिया, यूके ने कैसे कर लिया? आप तो विश्व गुरु हैं और विश्व गुरु एक सेंसस नहीं करा सकता। इसका जवाब क्यों नहीं देते? ऐसे फालतू के जवाब यहाँ से मिल रहे हैं। 2 साल से सेंसस नहीं हुआ, डिलिमिटेशन का, और यही कारण है सर कि यह जुमलाबाजी हमेशा चलती रहती है। हर सरकार आती है इलेक्शन से पहले ये औरतों के वोट लेने के लिए। मैं तो यही कहूंगी
कि इसी कारण करके अब स्टैटिस्टिक्स को आप देखिए, ग्लोबल जेंडर गैप 23 रिपोर्ट कहती है इंडिया इज 127 आउट ऑफ 146 नेशन। भूटान और नेपाल और चाइना से भी पीछे हमारे देश है। जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स 22, इंडिया इज 122 आउट ऑफ 164। कहते हैं 2 साल लग जाएंगे जब तक ये जेंडर इक्वालिटी होएगी सर। और सर, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, क्यों इस सदन में इस चीजों के बारे क्यों नहीं कभी चर्चा होती है? पिछले 5 साल में क्राइम अगेंस्ट वुमेन 26% बढ़ा है। इसीलिए तो सब मणिपुर में एक औरत के ऊपर ऐसी हरकत होती है और 3 महीने तक सरकार मुंह नहीं खोलती, आखिर में नो कॉन्फिडेंस मोशन करके ही मुंह खोलती है। हरियाणा का मिनिस्टर सेक्सुअल असॉल्ट के लिए अक्यूज्ड है, लेकिन कैबिनेट स्टेटस में अभी एंजॉय कर रहा है। वुमेन रेसलर्स जो इतने बड़े बड़े हमारे मेडल लेके आती हैं, महीनों से बैठी हुई हैं, लेकिन बाहुबली अभी तक इधर बैठे हैं। और बिल्किस बानो के रेपिस्ट को तो संस्कारी कह के इनके जो लीडर्स हैं स्टेज पे चढ़ा के उनको मान देते हैं। सर, दिस हाउस 306 MPs have criminal cases like rape, murder and kidnapping. 45% of them are from the ruling party. ये बेटी बचाओ है तो बोलना क्या है करते सर? लिटरेसी रेट इन आवर कंट्री इज 65%, 20% lower, 20% lower than the global average, sir. And health तो क्या है? India is the last in the global gender gap index of health and survival index, last out of all the nations, sir. So sir, आपके देश में लॉकडाउन आप घंटों में कर सकते हैं, आप यहाँ पे नोटबंदी घंटों में चुटकी में मार के कर सकते हैं, आप जल्दी जल्दी GST ला सकते हैं, तो ये वुमन रिजर्वेशन बिल क्यों नहीं ला सकते? ये क्यों नहीं ला सकते? इसका जवाब दे कि 9.5 साल से क्यों नहीं लेके आए, और अब जब लाए हैं तो ये अगले इलेक्शन से इम्प्लीमेंट आप क्यों नहीं कर रहे? इसका जवाब दे। सब मैं तो यही कहना चाहूंगी कि हम तो SGPC हमारे सिखों के गुरुओं के टाइम से हमेशा, हमारे पहले गुरु ने 550 साल पहले बोला था औरतों को सत्कार्य सो क्यों मंदा खिर जमे राजान। हमारे सेकंड गुरु ने विमेन लिटरेसी को इनकरेज किया। हमारे थर्ड गुरु ने सती जैसी प्रथा, फीमेल चाइल्ड मैरिज, पर्दा सिस्टम सब बैन किया। हमारे फोर्थ गुरु ने डाउरी के खिलाफ हमें सिखाया, और हमारे 10th गुरु ने जब खालसा पंथ बनाया तो माता साहेब कौर से पतासे डाल के पूरे पंथ को बोला कि औरत तुम्हारी माँ की तरह है। और इसीलिए हमारा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जो ओनली इन द वर्ल्ड, द ओनली इंस्टीट्यूशन which is voted by the Sikhs to run it, gave voting rights to Sikh women in 1925, even before the country got its independence. हमने अपनी औरतों को voting rights हमारी community ने दी थी. And sir, this is Shromi Akali Dal is the first party in the country. In 2012, we made the first finance minister. Yes, please conclude. इतने बड़े होके बाद में लेके आए, उससे पहले तो हम लेके आए हैं. So sir, being a woman, I definitely support this bill, but I will end by saying कि महिला आरक्षण बिल तुरंत लागू करो। वोट No, you can't show the placards. महिला को उसका हक दो। मोहम्मद बशीर जी, हक देना है तो कोई बात होती है, नहीं तो जैसे से जुमलाबाजी है तो फिर जुमले में तो डबलिंग फार्मर्स इनकम, बेटी बचाओ, स्वच्छ भारत, अच्छे 15 लाख बहुत सुन लिया, और ये जुमला